پاکستان کی سیکورٹی پالیسیز اور افغانستان سے منجام حکمت عملی پر قومی اتفاق کی رائے موجود ہے۔ پاکستان سیاسی اور عسکری قیادت مکمل ہم آہنگ ہے۔ افغان طالبان کی غیر نمائندہ حکومت شدید اندرونی بندی کا شکار ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان کے گمراہ کن اور بدنیتی پر مبنی بیانات پر وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا دو ٹوک جواب۔ پاکستان نے بھارت کی ایک اور سازش ناکام بنا دی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را نے پاکستانی مچھیرے اعجاز ملاح کو پیسوں کا لالچ دے کر گھناؤنے مقاصد کے لیے آمادہ کیا۔ جب اعجاز ملاح نے یونیفارم خریدے تو اس کی نگرانی شروع کی گئی۔ سیکیورٹی اداروں نے مشکوک حرکات پر اعجاز ملاح کو گرفتار کیا تو اس نے اعتراف جرم کر لیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس۔ بھارت پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان مخالف مہم بھارت کی سفارتی اور عسکری ناکامیوں کا واضح ثبوت۔ پاکستانی سیکیورٹی ادارے ملکی سرحدوں کے دفاع اور تحفظ کے لیے مکمل چوکنا۔ پاکستان عالمی سطح پر عزت اور وقار حاصل کر رہا ہے۔ بھارت یہ برداشت نہیں کر پا رہا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ۔ پاکستان خود مختار ملک ہے، ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوتی۔ پاکستان دوسرے ملکوں کی خود مختاری کا بھی احترام کرتا ہے۔ بھارتی مضموم عزائم اس کے برعکس ہیں۔ پاکستانی ادارے چوکنا اور دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری۔ افغان مہاجرین کی باعزت وطن واپسی کا سلسلہ تیزی سے جاری۔ چمن بارڈر سے ایک روز میں مزید 10,700 افغان مہاجرین واپس گئے۔ مہاجرین کی تورخم سرحد سے بھی واپسی جاری۔ اب تک 15,60,000 افغان مہاجرین واپس آ چکے۔ ایف سی اور سول انتظامیہ کی جانب سے رہائش اور کھانے کا بھی انتظام۔ پاکستان میں اب بغیر پاسپورٹ اور ویزا کے کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ آزاد، باخبر اور ذمہ دار صحافت جمہوری معاشرے کی بنیاد۔ صحافی حقائق تک عوام کی رسائی کو ممکن بناتے ہیں۔ صحافیوں پر پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی کے دوران تشدد، دھمکی یا انتقام پر مبنی جرائم دراصل آزادی اظہار پر حملہ ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کے عالمی دن پر حق کے لیے مشکلات برداشت کرنے والے صحافیوں کو خراج تحسین۔ ملک میں آزادی صحافت کے تحفظ اور صحافیوں کو محفوظ ماحول فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ ٹیکس نظام میں اصلاحات کے مثبت نتائج۔ 59 لاکھ ریکارڈ ٹیکس گوشوارے جمع۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا FPR حکام کو خراج تحسین۔ عوام سے ذمہ داری کا ثبوت دینے پر اظہار تشکر۔ 9 لاکھ نئے ٹیکس فائلرز کا ٹیکس نیٹ میں آنا حکومتی پالیسیز پر اعتماد کا عکاس ہے۔ ٹیکس گوشواروں کو آسان اور سہل بنایا گیا۔ بندرگاہوں پر خود کار کلیئرنس نظام سے کرپشن کا خاتمہ اور کارکردگی کو یقینی بنایا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ پاکستان کی معیشت استحکام کی جانب گامزن۔ ٹیکسٹائل برآمدات 3 سال کی بلند ترین سطح پر، حجم $1.6 ارب تک پہنچ گیا۔ مستحکم معیشت بروقت فیصلوں، اچھی پالیسیوں اور بہترین مالی نظم و ضبط کا نتیجہ ہے۔ معاشی ماہرین نے کامیابی کو ملک کی معیشت اور ٹیکسٹائل شعبے کے لیے خوشائن قرار دیا۔ SIFC زرعی شعبے میں ترقی اور جدت کے لیے کوشاں۔ پاکستان اور کینیڈا کا زرعی تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ دونوں ملکوں کا ہائیبرڈ بیج اور لائیو سٹاک کی افزائش پر تعاون بڑھانے پر غور۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی ملک میں زرعی مشینری کی تیاری کے لیے مشترکہ منصوبوں کی تجویز۔ کینیڈا کے ساتھ زرعی اور غذائی تحفظ میں شراکت داری سے پاکستانی برآمدات کو عالمی سطح پر فروغ حاصل ہوگا۔ SCO ویژن 2025 نوجوانوں کو بااختیار بنانے کا عزم۔ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے نوجوان بااختیار بننے کی راہ پر گامزن۔ دونوں علاقوں میں جدید ترین 100 IT سیٹ اپس قائم۔ 700 سے زائد افراد کو روزگار جبکہ 1500 فری لانسرز کو بااختیار بنایا گیا۔ مظفر آباد میں پاکستان کا پہلا خواتین کے لیے سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک مظفر آباد میں قائم کیا گیا۔ DG SCO کا نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور خطے میں IT انقلاب لانے کے لیے عزم کا اظہار۔ آپریشن سندور کی ناکامی پر شکست خوردہ مودی کی خاموشی پر پورا ہندوستان سیخ پا۔
امریکی صدر کے پاکستان کے حق میں بیانات پر اپوزیشن جماعتوں کی مودی سرکار پر کڑی تنقید، مودی کو ایک بزدل انسان قرار دیا جو امریکی صدر ٹرمپ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق 7 طیارے مار گرائے گئے، اس پر نریندر مودی کی خاموشی اسے تسلیم کرتی ہے۔ بنیان المرصوص میں پاکستانی فوج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دے کر ثابت کر دیا کہ ملک کی سرحدیں ناقابل تسخیر ہیں۔ میکسیکو کی ریاست سونورا میں سپر مارکیٹ میں دھماکہ اور آتش کی 7 بچوں سمیت 23 افراد ہلاک، 11 زخمی۔ دھماکہ سونورا کے علاقے ہرموسلو میں سپر سٹور میں ٹرانسفارمر پھٹنے سے ہوا۔ دھماکے کے بعد سٹور میں آگ بھڑک اٹھی جس سے پورے سٹور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دھماکے کی وجوہات کا پتہ چلانے کے لیے تحقیقات جاری۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی20 سیریز 2-1 سے جیت لی۔ تیسرے ٹی20 میں پاکستان کی جنوبی افریقہ کے خلاف 4 وکٹ سے کامیابی۔ جنوبی افریقہ نے 20 اوورز میں 9 وکٹس پر 139 رنز بنائے۔ پاکستان نے 140 رنز کا ہدف 19 اوورز میں 6 وکٹس پر حاصل کر لیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی20 سیریز جیتنے پر پاکستانی ٹیم کو مبارکباد۔ دونوں ٹیمز کے درمیان 3 میچز کی ون ڈے سیریز منگل سے فیصل آباد میں شروع ہوگی۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی20 سیریز میں کامیابی، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قومی ٹیم کو مبارکباد۔ پاکستانی ٹیم نے شاندار کھیل پیش کیا، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور ان کی ٹیم کی زبردست کاوشوں کو سراہتا ہوں۔ وزیر اعظم قاسم حاجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام۔ کون بنے گا ویمنز کرکٹ کا نیا ورلڈ چیمپئن؟ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کا فائنل آج جنوبی افریقہ اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ مقابلہ دن 2:30 بجے سے دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم پہلی مرتبہ فائنل میں پہنچی۔ بھارتی ٹیم 2005 اور 2017 کے بعد تیسری مرتبہ فائنل کھیلے گی۔ سکردو میں جشن آزادی گلگت بلتستان پولو کپ، سکردو انچن کی ٹیم نے ٹرافی اپنے نام کر لی۔ فائنل میں سکردو انچن نے سکردو مقپون کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرایا۔ یوم آزادی کی مناسبت سے چومیک پل پر آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ۔ اور فرانس میں ATP پیرس ماسٹرز 1000 ٹورنامنٹ، اٹلی کے ینک سینر کی جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو کو شکست، فائنل میں پہنچ گئے۔ دوسرے سیمی فائنل میں کینیڈا کے فیلکس اویلیاسم نے قازقستان کے الیگزینڈر ببلک کو ہرا دیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں ہما ملک۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے افغان طالبان کے ترجمان کے بیان پر۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے شدید رد عمل اور 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ اپنی پوسٹ میں افغان ترجمان کے گمراہ کن اور بدنیتی پر مبنی بیانات پر 2 ٹوک جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسیوں اور افغانستان سے متعلق جامع حکمت عملی پر قومی اتفاق رائے موجود ہے۔ پاکستانی قوم سیاسی اور عسکری قیادت مکمل ہم آہنگ ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا کے عوام افغان طالبان کی سرپرستی میں جاری بھارتی پراکسیوں کی دہشت گردی سے خوب واقف ہیں، اس حوالے سے کوئی ابہام نہیں۔ در حقیقت افغان طالبان کی غیر نمائندہ حکومت شدید اندرونی دھڑے بندی کا شکار ہے۔ افغان طالبان خواتین، بچوں اور اقلیتوں پر مسلسل جبر، اظہار رائے، تعلیم اور نمائندگی کے حقوق سلب کر رہے ہیں۔ 4 برس گزرنے کے باوجود افغان طالبان عالمی برادری سے کیے وعدے پورے نہ کر سکے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ اپنی اندرونی تقسیم، بدامنی اور گورننس کی ناکامی چھپانے کے لیے محض جوش خطابت، بیانیہ سازی اور بیرونی عناصر کے ایجنڈے پر عمل کیا جا رہا ہے۔ افغان طالبان بیرونی عناصر کی پراکسی کے طور پر کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس پاکستان کی افغان حکمت عملی قومی مفاد میں اور علاقائی امن و استحکام کے حصول کے لیے ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ کو یقینی اور خارج کی گمراہ سوچ کو ناکام بنانے کے لیے سرحد پار دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن اقدامات جاری رکھے گا۔ جھوٹے بیانات سے حقائق نہیں بدلیں گے اور عملی اقدامات ہی اعتماد کی بنیاد ہیں۔
پاکستان نے ترجمان افغان طالبان کے گمراہ کن بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق استنبول مذاکرات سے متعلق حقائق کو افغان طالبان رجیم کے ترجمان نے توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ پاکستان نے افغان سرزمین پر موجود دہشت گردوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ افغان فریق کے دعوے پر پاکستان نے فوری طور پر تحویل کی پیشکش کی۔ پاکستان کا موقف واضح، مستقل اور ریکارڈ پر موجود ہے۔ پاکستان کے خلاف غلط بیانی قبول نہیں ہے۔ افغانستان کی جانب سے جھوٹے دعوے حقائق کی منافی ہیں۔ پاکستان نے واضح کیا کہ دہشت گردوں کی حوالگی سرحدی انٹری پوائنٹ سے ممکن ہے، کسی بھی متضاد دعوے کو بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دیتے ہیں۔ وزارت اطلاعات نے مزید کہا کہ پاکستان کے موقف کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور بھارت میدان جنگ کی تاریخی شکست اور اپنی تاریخی ہزیمت کو بھلا نہیں پا رہا۔ بزدل اور سازش پڑوسی ایک بار پھر پاکستان کے خلاف سرگرم ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے بھارتی سازش کے شواہد میڈیا کے سامنے پیش کر دیے۔ رپورٹ کریں گے ڈاکٹر عمر ملک۔ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ میدان جنگ میں شکست فاش کے بعد بھارت ایک بار پھر جارحیت کے لیے فضا پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس بار کلبھوشن یادیو جیسے کمیشنڈ آفیسر سے نہیں بلکہ ایک ملح کو خوف زدہ کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا تھا۔ He was arrested by the Indian Coast Guard. He was taken to an undisclosed location and he was coerced and forced to do some tasks for the Indian intelligence agency. He was given greed that he would be compensated and that if he did not comply, he would have to stay imprisoned for 2 to 3 years. So this common fisherman by the name of Ijaz Mallah was eventually released by the Indian intelligence agency and was sent to Pakistan on a task to procure certain things for the Indian intelligence agency, which included uniforms of Pakistan Navy, uniforms of Pakistan Army and uniforms of Sindh Rangers, because this was part of a bigger plan of Indian intelligence agency to launch a propaganda warfare against Pakistan. وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ دنیا بھارت کے گھناونے عزائم اور جھوٹے بیانیے سے مکمل طور پر آگاہ ہے۔ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے الرٹ ہیں اور کسی بھی سازش کو ناکام بنانے کے لیے تیار ہیں۔ Our intelligence agencies are well equipped to deal with any situation. They put him under surveillance when he tried to procure these items. So he was also asked to get Pakistani currency, cigarettes, matchboxes, lighters, and was also asked to specifically procure Zong SIM cards for the mobile telephone. So that is exactly what he did. He procured all these items and he was on his way to India when law enforcement agencies apprehended him from the sea, arrested him, took these items into custody. داخلہ کے وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا کہ آپریشن سندور میں ناکامی کی خفت مٹانے کے لیے بھارت مسلسل سازشیں کر رہا ہے۔ اعجاز ملح کو بھارتی کوسٹ گارڈ نے گرفتار کر کے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ یہ وردیاں اور اس پہ نام بھی اس طرح کے جس میں پتہ چلے کہ مسلمان ہیں۔ پھر زونگ کی سم یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ پہلگام میں بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ چائنیز سیٹلائٹ فون ملا ہے، یعنی ایک پہلے آپ کوشش کرتے ہیں بتائیں کہ یہ پاکستان میں سے کوئی آیا تھا، پھر دوسری کوشش کرتے ہیں کہ اس میں چائنا کی کوئی نہ کوئی چیز انوالو ہے، اور دنیا کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم چائنا کے خلاف بھی یہاں بڑا کوئی ڈٹ کے کھڑے ہیں یا ان کے مقابلے میں ہیں، یا ان کو بھی ساتھ آپ ہمارے ساتھ کھڑا کر کے کوئی اپنا ایک امپریشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پریس کانفرنس میں صحافیوں کے سامنے اعجاز ملح کا اعترافی بیان بھی پیش کیا گیا جس میں بھارتی سازش کی مکمل تفصیلات تھیں۔ ایک تو جیل کا ڈر تھا اور اس نے انعام کے لیے بات کیا تو میں نے بولا حامی بھر دی۔ سنانے کے بعد پہلے اس نے مجھے کوئی چیزیں بتائی، اس نے بولا یہ سامان لے کے آنا، رینجرز کی وردی ہے، نیوی کا اور آرمی کا وردی لے، ہمارے کو 3 سمیں چاہیے زونگ کی، وہ لے کے آنا ہے، اور 3 چاہیے جو موبائل کا دکان ہے، دکان کا جو بل ہوتا ہے وہ 3 بل چاہیے ہمارے کو، اور اس کے بعد سگریٹ پاکستانی اور ماچیز کے ڈبے اور لائٹر اس کے ساتھ۔ پریس کانفرنس میں اعجاز ملح اور اس کے انڈین ہینڈلر کی واٹس ایپ گفتگو بھی پیش کی گئی۔ تینوں سینا کا اپنے ایک 2 جوڑی ڈریس لے، ایک سائڈ نام لکھا ہوگا، دوسری سائڈ پاک نیوی، یہ 2 نیم پلیٹ الگ الگ رہیں گی۔ ایسے میں نے اوپر دیکھو 6 نام بھیجے ہیں، 6 نام کی، 2 آرمی کی، 2 نیوی کی، 2 رینجر کی بنوانی ہے، اور پھر ایک سائڈ جو لگی ہیں
पाक नेवी, पाक आर्मी और रेंजर्स। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि भारत को अपनी शिकस्त हजम नहीं हो रही और न ही पाकिस्तान की सफारती मैदान में कामयाबी बर्दाश्त हो रही है। यही वजह है कि भारत एक बार फिर घनावनी साजिश की मंसूबाबंदी कर रहा है। डॉक्टर उमर मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अफगान महाजरीन की बाइज्जत वतन वापसी का सिलसिला तेजी से जारी है। गुज़िश्ता रोज सिर्फ चमन बॉर्डर से तकरीबन 10,700 अफगान महाजरीन को बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान वापस भेजा गया। अफगान महाजरीन की वतन वापसी का सिलसिला तोरखम सरहद से शुरू किया गया है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक तकरीबन 15,60,000 अफगान महाजरीन की वतन वापसी हो चुकी है। हर शख्स की दस्तावेजात की तस्दीक के बाद ही सरहद अबूर करने की इजाज़त दी जा रही है। अफगान महाजरीन के लिए FC और सिविल इंतजामिया की जानिब से रिहाइश और खाने का भी इंतजाम किया गया है। अफगान महाजरीन की वापसी का इक़दाम पाकिस्तान ने अपनी कौमी सलामती को मद्देनजर रखते हुए उठाया है। पाकिस्तान में अब बगैर पासपोर्ट और वीज़ा के अफगानियों का दाखिला मुमकिन नहीं होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 59 लाख रिकॉर्ड टैक्स गोशवारे जमा होने पर FPR हुक्काम की सताइश की और जिम्मेदारी का सबूत देने पर आवाम से इज़हार तशक्कुर किया है। उन्होंने कहा कि टैक्स निज़ाम में इस्लाहात के मुस्बत नताइज मिल रहे हैं। 9 लाख नए टैक्स फाइलर्स का टैक्स नेट में आना हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का अक्कास है। वज़ीर आज़म ने कहा कि FPR में मेरिट की बारादस्ती यकीनी बनाते हुए टैक्स गोशवारों को आसान बनाया गया, जिसके बायस रिकॉर्ड गोशवारे जमा हुए। उन्होंने कहा कि बंदरगाहों पर खुदकार क्लियरेंस निज़ाम के निफाज, पॉइंट ऑफ सेल की तादाद में इजाफे से करप्शन का खात्मा, सेल्स टैक्स की चोरी में कमी और कारकर्दगी में बेहतरी आई। वज़ीर आज़म ने कहा कि FPR के निज़ाम में मज़ीद इस्लाहात जारी हैं, जिसके बायस करप्शन और गैर रस्मी मईशत का मुकम्मल खात्मा मुमकिन होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से साहिवाल डिवीज़न के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स ने मुलाकात की। मुलाकात में अवामी फलाह के मनसूबों, अमन अमान, रोड्स की बहाली, सुथरा पंजाब, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में जारी इस्लाहात पर तफसीली बातचीत की गई। साहिवाल डिवीज़न के अरकान असम्बली ने पंजाब भर में 20,000 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली पर और जदीद केथ लैब के क़याम और इलेक्ट्रो बसेस लॉन्च करने पर वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि अवामी खिदमत, तेज़ रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में जराइम की शरह में नुमायां कमी आई है, शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ है। अजला में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि रोजगार और खुशहाली का भी जरिया है। साहिवाल के अरकान असम्बली ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक नया कल्चर है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की लीडरशिप में पंजाब आज पुरअमन, साफ और बर्क रफ्तारी से तरक्की करता हुआ सूबा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने सूबे में तरक्याती कामों की रफ्तार को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। केथ लैब्स और इलेक्ट्रोबस सर्विस जैसे मंसूबे आवाम दोस्त क़यादत की रोशन मिसाल हैं। हर तबका मुस्तफ़ीद हो रहा है। और दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम की रोकथाम का दिन इस अज़म के साथ मनाया जा रहा है कि रियासत के इस चौथे सुतून की आज़ादी के साथ साथ इसके तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जाएगा। रिपोर्ट करेंगी वरदा सलीम। सहाफ़ी मुआशरे की आंखें और कान हैं जो मुआशरे के मसाइल को उजागर करके उनके हल में अपना तामीरी किरदार अदा करते हैं। अपने फ़राइज़ की इंजाम दही के दौरान अक्सर सहाफ़ी खतरा से दुचार होते हैं और उनकी जिंदगियां दाव पर लग जाती हैं। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में कत्ल, अगवा और तशद्दुद के खात्मे और सहाफ़ियों के लिए मुकम्मल इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। ये दिन दरअसल उन सहाफ़ियों को खराज तहसीन पेश करना है जो अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारियों की अदायगी में अपनी जान से गए, लेकिन एक मैसेज दे गए कि हक़ और सच के हवाले से अपनी बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हुए किसी तरह की भी कुर्बानी देनी पड़ी वो कुर्बानी ज़रूर देनी है। और ये दिन इस अमर की याद भी दिलाता है कि आज़ादी सहाफ़त ये एक महज़ब और जमहूरी मुआशरे की बुनियाद है और इसमें जहाँ पर सहाफ़ियों की ज़िम्मेदारी ये है कि वो अपने अपने मुल्कों की बका, सलामती और तरक्की और खुशहाली के अमल में अपना एक मुस्बत किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के हवाले से जहाँ एक बेहतरीन माहौल मौजूद है, वहीं सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जाता है। हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है और इस सिलसिले में सहाफ़ी तंजीमों के नुमाइंदों को भी मुशावरती अमल में शामिल किया जाता है। रियासत के इस अहम सतून के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के लिए अभी भी मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज़ाद, बाखबर और ज़िम्मेदार सहाफ़त किसी भी जमहूरी मुआशरे की बुनियाद है। सहाफ़ी सच्चाई के लंबरदार और हक़ाइक़ तक अवाम की रसाई को मुमकिन बनाते हैं। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि अपने पेशेवराना फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान सहाफ़ियों के खिलाफ तशद्दुद, धमकी या इंतकाम पर मबनी जराइम दरअसल आज़ादी इज़हार पर हमला है। उन्होंने हक़ व सच की खातिर मुश्किलात बर्दाश्त करने वाले सहाफ़ियों को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने फ़र्ज़ मनसबी के दौरान अपने जानों के नजराने पेश करने वाले अहले कलम और मीडिया वर्कर्स के अहले खाना से इज़हार यकजहती भी किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ और सहाफ़ियों को महफूज माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम की मौसर तफ्तीश, इंसाफ की फराहमी और इन जराइम के मुर्तकबीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाने के लिए तमाम तरह इक़दाम बुरे कार लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने बैनुल-अक़वामी बरादरी, मीडिया इदारों और सिविल सोसाइटी से अपील की कि वो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और इज़हार राय की आज़ादी के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करें। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा है कि एहसास ज़िम्मेदारी के साथ आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत की असल असास है। मजबूत जमहूरी मुआशरे के लिए सहाफ़त का आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि दिन मनाने का मकसद हक़ और सच की पादाश में कत्ल होने या तकलीफ़ें सहने वाले सहाफ़ियों को याद करना है। पंजाब में सहाफ़ी और सहाफ़त महफूज हैं। पंजाब में सहाफ़ियों के कत्ल और तशद्दुद के वाक़यात ना हुए ना ही होंगे। वज़ीर आला ने कहा कि सहाफ़ी मुआशरती इंसाफ के मुहाफ़िज़ और आवाम की आवाज़ हैं। हक़ सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म और तशद्दुद बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जुल्म, नाइंसाफ़ी और झूठ को बेनकाब करने वाले सहाफ़ी हीरोज़ हैं। बेहैसियत वज़ीर आला आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन हूँ। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत सहाफ़ियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतादिद इक़दाम कर रही है। बेघर सहाफ़ियों के लिए अपनी छत का ख्वाब पूरा करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हक़ और सच की राह पर चलने वाले सहाफ़ियों के साथ हैं और उनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुदब्बराना क़यादत में न सिर्फ पाकिस्तान को मुआशी मैदान बल्कि सफारती सतह पर भी बड़ी कामयाबियाँ हासिल हुई हैं और दुनिया में मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ है। मानसेरा में जागूड़ी वादी कोनिश में मकामी मायदीन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम की खुशहाली और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बुरुए कार ला रही है। उन्होंने कहा कि दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में बिजली की फराहमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है ताकि इन इलाकों के मकीनों को भी शहरी इलाकों की तरह सहूलियात मिल सकें। उन्होंने मायदीन से कहा कि हमें मुआशरे की बेहतरी और फलाह व बहबूद के लिए इत्तेफाक और इत्तेहाद का अमली मुजाहरा और फ़िरका परवरी से इज्तनाब करना होगा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि भारत ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त के बाद साजिशों में मसरूफ़ है। बदअमनी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फ़ौज के बहादुर जवान हर महाज पर डटे हुए हैं और भरपूर जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने हल्का N18 हरीपुर में ज़िमनी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के ज़िले दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर पार्टी कारकुनों और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने कहा कि N18 से मुंतखब होने वाले साबिक रुकन कौमी असम्बली PTI से ताल्लुक़ रखते थे। वो कौमी सालबियत और रियासती इदारों पर हमलों में मुलव्विस होने के बायस नाअहल हुए। उन्होंने कहा कि 9 मई का सानहा मुल्क की तारीख का स्याह बाब है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने रियासती इदारों और कौमी सलामती पर हमला किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज सरहदों पर दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बना रही हैं, जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ अंदरून मुल्क इंतशार और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मसरूफ़ है। कैप्टन सफ्तर ने कहा कि तहरीक इंसाफ के दौर में मुल्क डिफ़ॉल्ट के दिहाने पर पहुंच चुका था। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अनथक कोशिशों से पाकिस्तान की मुआशी तबाही से बचा लिया गया। अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाबर नवाज खान को भारी अक्सरियत से कामयाब कराएं ताकि तरक्की और खुशहाली के सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाया जा सके। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत में ज़राअत का अहम किरदार है। ज़राई शोबे में जदीद मशीनरी का इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। चेयरमैन पाकिस्तान किसान बोर्ड पंजाब मियां मोहम्मद अजमल की क़यादत में किसानों के वफ़द से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि मौजूदा सैलाब से किसानों की फसलें तबाह हो गईं। किसानों को गंदम की फ़रोख्त के लिए साजगार माहौल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि ज़राई शोबे की पैदावार बढ़ाने के लिए ज़राई अजनास के बीज के मायार को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि हुकूमत की अवलीन तरजीह मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लेकर आना है। मुल्क की तरक्की में रोड़े अटकाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सियासी क़यादत और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया में पाकिस्तान का एतमाद दोबारा बहाल किया।
अमरीकी रियासत वर्जीनिया में पाक अमरीका बिजनेस कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2025 शुरू हो गया है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सफ़ीर ने अमरीकी मार्केट की वसी सलाहियतों को मद्देनजर रखते हुए कारोबारी हिकमत अमली तरतीब देने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मजबूत माशी और तिजारती ताल्लुकात पायदार पाक अमरीका शराकत की ज़मानत होंगे। एक रोज़ा तकरीब में टेक्सटाइल्स, फर्नीचर, लेदर, फार्मास्यूटिकल्स, इत्तलाती टेक्नोलॉजी, सियाहत और रियल स्टेट जैसे शोबों की पाकिस्तानी कंपनीज ने शिरकत की, जहाँ तिजारत, सरमायाकारी और मुख्तलिफ मौक़े पर तबादला ख्याल हुआ। ब्रेन डिज़ाइनर के CEO मोहम्मद रऊफ राजा ने कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। पाक अमरीका बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन मोहम्मद सदीक शेख ने छोटे कारोबारों के ताउन को उजागर किया। सफ़ीर ने स्टॉल्स का दौरा किया और छोटे ताजरों के लिए प्लेटफॉर्म अच्छा शगुन करार दिया। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़रिए एहतमाम यौम सियाह कश्मीर की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में जबर और इस्तेहसाल करके भारत अपनी चारादारी को कायम रखना चाहता है, मगर बहादुर कश्मीरी अवाम ने हमेशा उसके तमाम अज़ाइम को नाकाम बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुकदमा इंतहाई एहसन अंदाज से पेश किया। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमों से मुतालबा है कि वो भारत को मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम से रोके और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका इस्तिस्वाब राय का हक़ दे, ताकि मकबूजा कश्मीर के अवाम आज़ादी की ज़िंदगी बसर कर सकें। दीगर मुकर्ररीन का कहना था कि 27 अक्टूबर 1948 मकबूजा कश्मीर का स्याह तरीन दिन है, जब भारतीय अफवाज ने बंदूक के जोर पर न सिर्फ कश्मीर पर कब्जा किया, बल्कि गुज़श्ता 8 से ज़ायद दहाइयों से मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी की जा रही है। भारत एक फाशिस्ट मुल्क है जो इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ा रहा है और खित्ते के अमन और सलामती को बर्बाद कर रहा है। ये पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी का एक अहम रुकन है कि हम मसला कश्मीर जो है दुनिया के सामने पेश करेंगे और इस बात की याद दहानी करेंगे कि ये एक अक़वाम मुत्तहिदा के तहत उनकी करारदादों के तहत इस मसले को हल करना है और ये अक़वाम आलम की ज़िम्मेदारी है कि वो इसको हल करवाएं और जो कश्मीरियों के इंसानी हकूक़ हैं उनकी भी हिफाजत करें और भारत को इस बात के बारे में बावर कराएं कि वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, इंसानी हकूक़ के क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है और वो दुनिया को इस बात का जवाब दे। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में स्वेद पाक में बैनुल-अक़वामी सकाफती वीक का आगाज़ हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया और रियाज सीज़न के बाहमी इश्तराक से होने वाले इस इवेंट का मकसद मुख्तलिफ कौमियतों के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। 2 नवंबर से 10 दिसंबर तक जारी रहने वाले इस फेस्टिवल में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, मिस्र, सूडान, शाम, इंडोनेशिया और फिलिपाइन समेत कई ममालिक के सकाफती रंग पेश किए जाएंगे। इवेंट में इन ममालिक के मारूफ गुलकार परफॉर्म करेंगे। खाने पीने के स्टॉल्स और सकाफती सरगर्मियाँ शुरका को महसूस करेंगी, जबकि बच्चों के लिए खुसूसी जोन भी कायम किया गया है। हुकाम के मुताबिक रियाज सीज़न का मकसद मुख्तलिफ सकाफतों को करीब लाना और आलमी हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर शिकस्त खुर्दा मोदी की खामोशी पर पूरा हिंदुस्तान सीखता है। ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त के बाद मुजरमाना खामोशी पर मोदी सरकार की भारत में रुसवाई जारी है। ऑपरेशन सिंदूर में अमरीकी सदर के पाकिस्तान के हक में बयानात पर अपोजिशन जमातों की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद का सामना है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक बुज़दिल इंसान है जिसके पास कोई विजन नहीं है। ये सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर ट्रंप के सामने खड़े नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो बताएं कि अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात झूठ पर मबनी हैं। कांग्रेस लीडर सोप्रिया श्री का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक 7 तैयारे मार गिरा गए। इस पर नरेंद्र मोदी की खामोशी उसे तस्लीम करती है। नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से शदीद खौफज़दा रहते हैं। मोदी की बुज़दिली की वजह से पूरे भारत की इज़्ज़त दांव पर लग चुकी है। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर साबित कर दिया कि मुल्क की सरहदें नाकाबिल तस्खीर हैं। खबर देंगे आपको मैक्सिको की रियासत सोनोरा में सुपरमार्केट में धमाके और आतिशबाजी में 23 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में 7 बच्चे भी शामिल हैं। सोनोरा के गवर्नर के मुताबिक हरमोसलो के इलाके में सुपर स्टोर में धमाका ट्रांसफार्मर फटने से हुआ। धमाके के वक्त अवाम की बड़ी तादाद स्टोर में मौजूद थी। धमाके के बाद स्टोर में आग भड़क उठी, जिससे पूरे स्टोर को अपनी लपेट में ले लिया। गवर्नर ने सोशल मीडिया पर बताया कि धमाके की वजूहात की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है।
पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान ज़राई ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। SIFC ज़राई शोबे में तरक्की और जिद्दत के लिए कोशा हैं। वफाकी वज़ीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन और कनाडियन हाई कमिश्नर तारिक अली खान ज़राई ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान और कनाडा का हाइब्रिड बीज, लाइफ स्टॉक की अफज़ाइश और फीड फॉर्मुलेशन में ताउन बढ़ाने पर गौर। वफाकी वज़ीर ने पाकिस्तान में ज़राई मशीनरी की मकामी तैयारी के लिए मुश्तरका मनसूबों की भी तजावीज़ दी। कैनोला की काश्त से ज़राई पैदावार में जिद्दत, किसानों की आमदनी में इजाफा और आलमी मार्केट्स तक रसाई मुमकिन होगी। कनाडा के साथ ज़राई और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में शराकत दारी से पाकिस्तान की बरामदात को आलमी सतह पर फ़रोग़ हासिल होगा। पाकिस्तान और कनाडा का सर्टिफिकेशन, मार्केट तक रसाई और तकनीकी ताउन के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तेफाक। SIFC की मौसर पॉलिसियाँ गैर मुल्की सरमाकारों का एतमाद हासिल करके मुल्की मईशत को मज़ीद मुस्तहकम करने में कोशां है। SEO विजन 2025 के तहत आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान बाइख्तियार बनने की राह पर गामजन हैं। IT के शोबे में नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जदीद तरीन 100 IT सेटअप्स कायम किए गए हैं और 700 से ज़्यादा अफराद को रोज़गार, जबकि 1500 फ्रीलांसर्स को बाइख्तियार बनाया गया। ख़वातीन के लिए पाकिस्तान का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मुजफ्फराबाद में कायम किया गया, जबकि खुसूसी अफराद के लिए खुद मुख्तार रिहायशी मराकज़ भी कायम किए गए हैं। इन इक़दामात की बदौलत $20 मिलियन के गैर मुल्की ज़र मुबादला का हुसूल मुमकिन हुआ। गवादर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 2005 से नौजवानों को हुनरमंद तरबियत दे रहा है, जो CPEC और मकामी तरक्की का अहम हिस्सा है। यहाँ इत्तलाती टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और दीगर शोबों में बैनुल-अक़वामी मयार की तालीम दी जाती है। हाल ही में जनरल ऑफिसर कमांडिंग गवादर डिवीज़न ने होनहार तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त की, जहाँ उन्होंने कहा कि यहाँ के तलबा बैनुल-अक़वामी मयार की तकनीकी तालीम हासिल कर रहे हैं। यही नौजवान पाकिस्तान के ताबनाक मुस्तकबिल के मेहमान हैं। नौजवानों का किरदार वतन की तामीर में मरकजी है। तालीम के साथ दयानतदारी और खुलूस नीयत की मेहनत ही मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है। अपनी सलाहियतें इल्म और तहकीक में सर्फ करें। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इन बासलाहियत नौजवानों से जुड़ा है, जो कामयाबी के साथ वतन की तरक्की का अज़्म रखते हैं। ये काविश गवादर की तरक्की और नौजवानों की बाख्तियार बनाने की बेहतरीन मज़हर है। मुल्तान की MNS सरे यूनिवर्सिटी में जॉब फेयर 2025 का कामयाब इनेकाद किया गया, जहां तालीम और सनत एक ही प्लेटफॉर्म पर यकजा हुई और नौजवानों को रोजगार और तरबियत के नए दरवाजे खुलने का मौका मिला। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान मिर्जा। जॉब फेयर UNDP और यूनिवर्सिटी के कैरियर डेवलपमेंट सेंटर के इश्तराक से मुनक्किद हुआ। इवेंट में दर्जनों मारूफ सनती और कारोबारी इदारों ने शिरकत की, जहां तलबा को बराह रास्त इंटरव्यूज, कैरियर गाइडेंस और इक्विपमेंट के मौके फराहम किए गए। इंडस्ट्री हमें ये बताए कि हमें कैसे ग्रेजुएट चाहिए, ताकि हम यूनिवर्सिटियां अपने करिकुलम में, अपने प्रैक्टिकल्स में, अपनी ट्रेनिंग में, अपनी मेंटरिंग में उन स्किल्स को, उस नॉलेज को, उस कॉन्फिडेंस को, उस प्रेजेंटेशन को, उन जो ओवरऑल उसकी बिल्डिंग ऑफ द पर्सनैलिटी, उसमें उन ट्रेड्स को, उन एट्रीब्यूट्स को ऐड किया जा सके। हर साल स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं और उनको जॉब की बहुत ज़्यादा इश्यूज होती हैं और पाकिस्तान में खासकर जॉब की वैकेंसीज बहुत कम निकलती होती हैं। तो उस हवाले से ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर हर साल या हर साल में 2 दफ़ा भी अगर इवेंट हो तो अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां बख्तावर तनवीर शेख ने कहा कि ये जॉब फेयर तालीम और सनत के दरमियान एक मजबूत पुल का किरदार अदा कर रहा है। टू प्रमोट पीस एंड माइनॉरिटी राइट्स। तो आई थिंक ये जितनी भी जो है आगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड जिस तरीके से बनता जा रहा है और जो कॉर्पोरेट कंपनीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, तो वो उस बायस में से निकल आए हैं और आगे महसूस ये होता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है आवाम को और यूथ को मिलेंगी। डॉक्टर मुबशिर मेहदी और डॉक्टर मोहम्मद इश्तियाक ने तलबा को बढ़ते हुए माशी शोबों में मौके तलाश करने की तरगीब दी, जबकि मुख्तलिफ कंपनियों ने मौके पर ही इंटरव्यूज और शॉर्ट लिस्टिंग मुकम्मल की। जॉब फेयर का मकसद तलबा तालबात के लिए रोजगार के मौके फराहम करना और उन्हें मार्केट से हम आहंग करना है। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। फैसलाबाद में तालीम दोस्त फोरम के ज़रिए एहतमाम साइंस मेले का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात ने जदीद साइंसी मॉडल्स और तहकीकाती मनसूबे पेश करके शुरका से खूब दाद समेटी। तफसील बताएंगे काशिफ मुनीर। साइंस मेले में स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के तहकीक के शौकीन तलबा की तरफ से स्टॉल लगाए गए। माहिरीन तालीम, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने मेले में शिरकत की। इन स्टॉलों पर साइंसी मॉडल, तहकीकाती मंसूबे और दिलचस्प तजर्बात पेश किए गए। मेले में रोबोटिक्स, मसनूई ज़हानत, बायोटेक्नोलॉजी और काबिल तजदीद तवानाई के
मॉडल ने शुरा की खसूसी तवज्जो हासिल की। शुरा ने तलबा की काविशों को सराहते हुए ऐसे मेलों के इनकाद को नौजवान नस्ल में तहकीक का जज्बा बेदार करने का जरिया करार दिया। इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। मेरा भी प्रोजेक्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें चाहिए कि हम अपनी अर्थ के लिए काम करें, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करें, वाटर को सेव करें। तलीम दिवस फोरम ने एक बहुत शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया है जिससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। फैसलाबाद साइंस मेला है, ये बच्चों के अंदर, बच्चे किताबों में साइंस को पढ़ते तो हैं लेकिन प्रैक्टिकल से ना आशना होते हैं। हम यहाँ पे ये मेला सजाते हैं, फैसलाबाद डिवीज़न से मुख्तलिफ इदारों से बच्चे साइंसी मॉडल बना के लाते हैं और उसमें खसूसियत ये होती है कि मॉडल्स जो हैं ये डायनेमिक होते हैं। साइंस मेला न सिर्फ तलबा की साइंसी रुझानात को उजागर कर रहा है बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान के मुस्तकबिल को भी रोशन कर रहा है। काशिम मुनीर, PTV न्यूज़, फैसलाबाद। आवाम को सेहत की सहूलत उनकी दहलीज पर फराहम करने के लिए ओकाड़ा में फील्ड हस्पताल कायम किया गया है, जहां से अब तक हजारों मरीज मुफ्त इलाज की सहूलत से मुस्तफीद हो चुके हैं। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद अशरफ। ओकाड़ा के दूर दराज इलाकों में बसने वाले शहरियों के लिए जदीद तिबी सहूलतों से आरास्ता मोबाइल फील्ड हस्पताल कायम किया गया है। इस फील्ड हस्पताल में मेडिकल ऑफिसर, लेडी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ समेत 12 अफराद खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ये हस्पताल हर गांव में सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक 2 दिन के लिए इलाज की सहूलत फराहम कर रहा है। फील्ड हस्पताल में मरीजों को OPD, मामूली सर्जरी, जचगी और हिफाजती टीकों के साथ अल्ट्रासाउंड, ECG, एक्सरे और लेबॉर्ट्री टेस्ट जैसी तमाम सहूलतें बिल्कुल मुफ्त फराहम की जा रही हैं। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने टेस्ट वगैरह किए, दवाई दी है। मेहरबानी वज़ीर आला का शुक्रिया। हमें टेस्ट भी फ्री हो रहे हैं और दवाइयाँ भी फ्री मिल रही हैं। यहाँ पे फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं, फ्री टेस्ट हो रहे हैं। हम वज़ीर आला पंजाब के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये चीज़ सहूलत हमें भेजी है। मेरा एक्सरे फ्री हुआ है, दवाइयाँ फ्री हुई हैं, टेस्ट फ्री है। फील्ड हस्पताल अब तक ओकाड़ा के कई देहातों में 2 दिन के लिए खिदमात फराहम कर चुका है। इन देहातों के हजारों मरीज फील्ड हस्पताल की अल्ट्रासाउंड और टेस्टों की मुफ्त सहूलत से मुस्तफीद होने के अलावा 130 अद्वियात भी मुफ्त हासिल कर चुके हैं। दिल के मरीज आ रहे हैं, उनकी ECG हो रही है, उनको मुफ्त दवाइयाँ दी जा रही हैं, उनको अवेयरनेस दी जा रही है। फील्ड हस्पताल के क़याम का मकसद दूर दराज इलाकों में बसने वाले लोगों को उनके घर की दहलीज पर मुफ्त सेहत की सहूलतों की फराहमी है, ताकि इन्हें बीमारी की हालत में बुनियादी इलाज के लिए सफ़र करके शहर न जाना पड़े। मोहम्मद अशरफ, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, ओकाड़ा। पंजाब के वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के ऐलान के मुताबिक सूबे भर की इमाम मसाजिद को हर माह 25,000 रुपये वजीफा दिया जाएगा। रहीम यार खान के उलमा कराम ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस वजीफे से उलमा कराम के माली मसाइल में कमी आएगी। पंजाब हुकूमत के इस बहुत अच्छे काम पर हम हिमायत करते हैं और हम कहते हैं कि उलमाए किराम को ज़रूर मिलना चाहिए। इस महंगाई के दौर में जहाँ वो इन मुश्किलात में काल अल्लाह काल रसूल पढ़ा रहे हैं और दीन की खिदमत कर रहे हैं, ये बहुत मुस्तहसन अक़दाम है और हम चाहते हैं कि ज़रूर उलमाए किराम की ये जो खिदमत का ऐलान है ज़रूर होना चाहिए। हुकूमत पंजाब ने जो उलमाए कराम के लिए 25,000 देने का जो इक़दाम किया है, बहुत ही बेहतरीन इक़दाम किया है। इससे जो इस माशी बहरान की वजह से उलमाए कराम मसाइल का शिकार थे महंगाई की वजह से, इससे उनको बहुत रिलीफ मिलेगा। उलमा किराम भी हमारे मुल्क पाकिस्तान के शहरी हैं और गरीब तबका है। महलों की मस्जिदों में या कॉलोनियों की मस्जिदों में ये होते हैं, वहाँ पर 20,000 15,000 तनख्वाह से ज़्यादा तनख्वाह नहीं होती है इनकी। पंजाब हुकूमत ने 25,000 रुपया देने का ऐलान किया है, ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है। इसके ज़रिए उलमा किराम की माली मुश्किलात कम होंगी। अकायद जहां नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुलहाए अक़ीदत पेश करने के लिए मुज़फ़्फ़राबाद में एक निजी तालीमी इदारे के ज़ेर एहतमाम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब के दौरान मुकर्ररीन ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना की पैरवी दोनों जहानों में कामयाबी का ज़रिया है। मुकर्ररीन ने कहा कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बनी नौ इंसान के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जिसमें दुनियावी और आखिरी ज़िंदगी के लिए रहनुमाई है। इस मौके पर नामवर नात खानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। आखिर में नुमाया कारकर्दगी के हामिल अफराद में तारीफ़ी असनाद और शील्ड्स तकसीम की गईं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के फलाही इक़दाम धी रानी प्रोग्राम के तहत भक्कर में इज्तिमाई शादियों के तीसरे मरहले की रंगारंग तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने 209 बयाता जोड़ों को मुबारकबाद पेश की और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। राना सिकंदर हयात का कहना था कि धी रानी प्रोग्राम वालिदैन के ख्वाबों की ताबीर और रियासत मदीना के फलाही मॉडल की अक्कासी है। हर दुल्हन को कीमती तोहफ़े और 2 लाख रुपए की सलामी पेश की गई, जबकि मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ़ खाने का एहतमाम भी किया गया। बुरेवाला में जिला विहाड़ी के पहले मोबाइल पुलिस स्टेशन का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब ज़राई यूनिवर्सिटी कैंपस बुरेवाला में मुनक्किद हुई, जिसमें पुलिस अफसरान, साबिक़ अरकान असेंबली और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये मनसूबा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर ख़वातीन की पुलिस से मुतालिक शिकायत के फौरी इज़ाले और उन्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, ड्राइविंग लाइसेंस समेत दीगर सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम करने के लिए शुरू किया गया है। DSP बुरेवाला के मुताबिक मोबाइल पुलिस स्टेशन ख़वातीन और तालिबात को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और फौरी इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएगा। साबिक़ अरकान असेंबली ने इसे हुकूमत पंजाब का तारीख़ी और अवाम दोस्त इक़दाम करार दिया और कहा कि ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के लिए सबसे अहम है। मंडी बहाउद्दीन में भी अशिया खुरोनोश में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। DG फूड अथॉरिटी पंजाब आसिम जावेद की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों ने माह अक्टूबर में मंडी बहाउद्दीन में मिलावट माफिया के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया और संगीन खिलाफ वर्जियों पर बेकरियों, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड पॉइंट्स को लाखों के जुर्माने आयद किए। पंजाब फूड अथॉरिटी की जारी कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माह अक्टूबर में मंडी बहाउद्दीन में 2000 से ज़ायद फूड पॉइंट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और बेकरियों की इंस्पेक्शन की गई और संगीन खिलाफ वर्जियों पर 134 को मजमूई तौर पर 20,42,000 के जुर्माने आयद किए गए। दूध सप्लाई करने वाली गाड़ियों और दुकानों से बरामद होने वाला 10,000 लीटर मिलावटी और नाक़िस दूध, 500 किलो मुज़र सेहत गोश्त और 242 किलो एक्सपायर और ममनुआ अशिया तल्फ कर दी गई हैं। और बच्चों को खसरा और रूबेला की बीमारी से बचाव की कौमी मुहिम 17 नवंबर को शुरू होगी। 29 नवंबर तक जारी रहने वाली इस मुहिम के दौरान 6 माह से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को खसरा और रूबेला से बचाव के हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। खसरा और रूबेला की बीमारी से बचाव के मौजू पर शेखुपुरा में आगाही सेमिनार हुआ। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैयद सजाद हुसैन शाह और महकमा सेहत के माहिरीन का कहना था कि बच्चों में खसरा और रूबेला एक ख़तरनाक बीमारी है। वालिदैन को चाहिए कि इस बीमारी से बचाव के लिए अपने बच्चों को हिफाजती टीके ज़रूर लगवाएं। महकमा सेहत मियां वाली के ज़रिए एहतमाम खसरा और रूबेला से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम के सिलसिले में DHDC हॉल में आगाही सेमिनार हुआ। सेमिनार से CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी खान ने खिताब करते हुए कहा कि खसरा और रूबेला से बचाव की 12 रोज़ा कौमी वैक्सीनेशन मुहिम 17 नवंबर से शुरू होगी और 29 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसमें 6 माह से लेकर 5 साल तक की उम्र के 2,39,000 बच्चों को खसरा हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वालिदैन और कम्युनिटी को खसरा और रूबेला की हिफाजती वैक्सीनेशन मुहिम से मुताल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फराहम की जाए ताकि वो अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवाकर अपने बच्चों को इस मूजी मरज़ से महफूज रख सकें। सेमिनार से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मियां काशिफ अली और इंचार्ज DHDC डॉक्टर अजीज़ुर रहमान मलिक ने भी खिताब किया और खसरा और रूबेला की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम से मुताल्लिक आगाही फराहम की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इंसानी हमदर्दी की कार मिसाल कायम कर दी। हाफिजाबाद के इलाके सुखेकी के करीब और मेहनत कश माजूर नौजवान अली हसन को जदीद इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फराहम कर दी गई। अली हसन टांगों से माजूर हैं और घर के करीब छोटी किराना दुकान चलाकर रोजगार कमा रहे हैं। चंद रोज कबल उन्होंने डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद को दरख्वास्त दी थी, जिस पर वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुसूसी हिदायत देते हुए महकमा सोशल वेलफेयर के जरिए मोटरसाइकिल फ्राहम की। मोटरसाइकिल मिलने पर अली हसन ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब वो बआसानी अपने रोज़मर्रा के काम और रोजगार चला सकेंगे। बाबा गुरु नानक का 556वां जन्मदिन आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर ननकाना साहिब में सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ीक और सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने इंतजामात का जायजा लेने के लिए गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब का दौरा भी किया। जावेद अहमद माविया की रिपोर्ट देखिए। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब
اور چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے امن و امان خواجہ سلمان رفیق نے اقلیتی امور کے صوبائی وزیر سردار رمیش سنگھ اروڑا اور سیکرٹری داخلہ پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کے ہمراہ گردوارہ جنم استھان کا دورہ کیا اور وہاں بابا گرو نانک کے جنم دن تقریبات کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ وفاقی اور پنجاب حکومت کی طرف سے سکھ یاتریوں کے لیے مثالی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی سکھ یاتریوں کی شاندار مہمان نوازی کریں گے۔ بلوچستان سے، KPK سے، کشمیر سے، گلگت سے آ رہے ہیں، انڈیا سے جو ہمارے سکھ یاتری آ رہے ہیں اور پوری دنیا کے تمام ہمارے سکھ یاتری آتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور انشاءاللہ جس حد تک ممکن ہوگا ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ سردار رمیش سنگھ اروڑا نے کہا کہ پاکستان ایک پرامن اور تمام اقلیتوں کے ساتھ محبت کرنے والا ملک ہے۔ سکھ یاتری بابا گرو نانک کے جنم دن کی خوشیاں منانے کے لیے بلا خوف و خطر پاکستان آئے۔ پاکستان کے اندر بالخصوص پنجاب کے اندر جتنے بھی ہماری مذہبی عبادت گاہیں ہیں، ہماری مذہبی اقلیت ہیں، ان کے اندر جو سینس آف ڈیپریویشن تھی اس کو ختم کر کے ان کے اندر سینس آف سیکیورٹی پیدا کرنا، ان کو سکھ یاتری تشریف لاتے ہیں تو ہم ان سب کے بہتر سے بہتر انتظامات کریں۔ اس سے قبل ڈپٹی کمیشن آفس میں ہونے والے اجلاس کے دوران صوبائی وزراء کو بابا گرو نانک کے جنم دن تقریبات کے انتظامات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ حکومت پاکستان کی ہدایت پر متروکہ وقف املاک بورڈ، پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی اور ذیلی انتظامیہ کی طرف سے سکھ یاتریوں کے لیے بہترین انتظامات کو یقینی بنایا گیا ہے۔ جاوید احمد معاویہ، PTV نیوز، ننکانہ صاحب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ہنرمند نوجوان پروگرام کے تحت خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ ساہیوال میں پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ فنڈ کی طرف سے خواتین میں فری ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز تقسیم کیے گئے۔ خاور علی چودھری کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہنرمند نوجوان پروگرام کے تحت دیہی خواتین کو ٹیکنالوجی کے ذریعے بااختیار بنانے کے پروگرام میں ڈیجیٹل کے تحت پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ فنڈ کی طرف سے خواتین میں ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی، جس میں خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ فنڈ کی طرف سے 93 خواتین میں فری ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر تقسیم کیے گئے تاکہ وہ جدید ٹیکنالوجی سے وابستہ ہو کر اپنے ہنر کو روزگار میں بدل سکیں۔ چیف منسٹر صاحبہ مریم نواز کا جو ہے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو دیہی علاقوں کی خواتین ہیں ان کے بارے میں سوچا، جو کہ کافی ڈسہارڈ ہو چکی تھی۔ مریم نواز شریف کا بہت بہت شکریہ ہے کہ جنہوں نے دیہات اور گلی محلے میں رہنے والی لڑکیوں کو چنا۔ سکل ڈیولپمنٹ کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب ٹاسک فورس کے چیئرمین عدنان افضل چٹھا نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام سے خواتین گھروں میں بیٹھ کر آن لائن فری لانسنگ اور ڈیجیٹل سکلز کے ذریعے اپنی معاشی حالت بہتر بنا سکیں گی۔ مریم نواز کی طرف سے خواتین کی تعلیم اور ہنرمندی پر خصوصی توجہ دیہی خواتین کے لیے نئی راہیں کھول رہی ہے۔ پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ فنڈ کے اس پروگرام کے تحت صوبہ بھر میں ہزاروں خواتین کو مفت تربیت اور ضروری سامان فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ وہ علمی زندگی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ کامیاب خواتین بااختیار پنجاب، مریم نواز ہنرمند پروگرام کا بنیادی مقصد ہے۔ خاور علی چودھری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ساہیوال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی عوامی ریلیف مشن کے تحت خانیوال میں سرور بازار کے لیے قرآن اندازی کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ 125 سٹالز شفاف طریقے سے الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں حسنین بن نصیر سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے عوامی ریلیف مشن کے تحت ضلع خانیوال میں شہریوں کو سستی اور معیاری اشیاء خوردہ نوش کی فراہمی کے لیے سہولت بازار قائم کر دیا گیا ہے۔ 125 کامیاب امیدواروں کو مختلف کیٹیگریز میں اسٹالز الاٹ کیے گئے۔ قرآن اندازی کے عمل میں ڈیو انڈسٹریز سیکشن آفیسر انڈسٹریز آری بیگ، ڈائریکٹر آپریشن صدام حسین سمیت دیگر افسران شریک ہوئے، جبکہ ممبر سہولت بازار اتھارٹی جمیل سبحانی نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ انتظامیہ کے مطابق سہولت بازار میں آٹا، چینی، دالیں، گوشت، سبزیاں، پھل اور دیگر بنیادی ضروری اشیاء سرکاری نرخوں پر دستیاب ہوگی۔ سہولت بازار خانیوال کی جو شاپس تھی 125 دکانوں کے عوض 340 کاروباری حضرات نے شاپس لینے کے لیے درخواستیں جمع کروائی، اور سی ایم صاحبہ کا جو ویژن تھا کہ جی پنجاب بھر کے شہریوں کے لیے سستا روزگار کا ایک پلیٹ فارم فراہم کیا جائے۔ قرآن اندازی کے تمام عمل عوام کی موجودگی میں مکمل شفافیت کے ساتھ مکمل کیا گیا۔ عوامی سہولت کے پیش نظر بازار کے 5 کلومیٹر کے دائرے میں مفت ہوم ڈیلیوری کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ شہریوں نے حکومتی اقدام کو سراہتے ہوئے کہا سہولت بازار عوام کے لیے ریلیف دہ ثابت ہوگا۔ حسنین بن نصیر، PTV نیوز، خانیوال۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں تعلیم کی بحالی کا بڑا قدم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر محکمہ تعلیم نے 24 سرکاری اسکولوں کی بحالی مکمل کر لی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ملک اللہ رتب حسن۔
तहसील अलीपुर के सिला मुतासरा इलाकों में तलीम का चिराग एक बार फिर रोशन हो गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर महकमा तलीम ने 48 सरकारी स्कूलों की मुरम्मत, सफाई और मुकम्मल बहाली का अमल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। अब इन स्कूलों में दोबारा तदरीसी अमल महमूल के मुताबिक जारी है। साजा का कहना है कि अगर हुकूमत पंजाब बर वक्त कदम ना उठाती तो बच्चों का तालीमी नुकसान नाकाबिल तलाफी होता। तमाम इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी ली और इस बहाली के अमल में बहुत ही अहम किरदार अदा किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तालीम दोस्त पॉलिसी की वजह से और स्टूडेंट्स के तालीम के हार्ज होने की वजह से उन्होंने कोशिश की कि जितना जल्द अज जल्द हो सके इस स्कूल को दोबारा रीओपन किया जाए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो तालीमी साल है वो ज़ाया ना हो जाए। वालिदैन और असातिज़ा ने भी हुकूमत पंजाब के इस कदम को सराहा है। सरकारी स्कूलों की बहाली न सिर्फ तालीम की बहाली का अलामती कदम है बल्कि ये बच्चों के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ का भी सबूत है। तालीम का ये नया आगाज़ उम्मीद है कि मुतासरा इलाकों में नई राहें खोलेगा। मलिक अल्लाह बोसन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ अलीपुर। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में सर्द रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहा। पंजाब के बेशतर अजला में स्मोक छाई रही। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -3, स्कर्दू -1 और ज़ियारत में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले गए तीसरे और फैसलाकुन मैच में ग्रीन शर्ट्स ने 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की। जनूबी अफ्रीका की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों पर 139 रन बनाए। रिजा हेनरिक्स ने 34, कार्बन बॉश ने 30, कप्तान डोवन फरीरा ने 29 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाफरीदी ने 3, फहीम अशरफ और डेब्यूटेंट उस्मान तारिक ने 2-2 विकेटें अपने नाम की। कौमी टीम ने 140 रन का हदफ 19 ओवर्स में 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 68 रन बनाए। उनकी इनिंग्स में 9 चौके शामिल थे। कप्तान सलमान अली आगा ने 33 और साहिबजादा फरहान ने 19 रन बनाए। बाबर आजम मैच, जबकि फहीम अशरफ सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज भी खेली जाएगी। सीरीज का आगाज 4 नवंबर को फैसलाबाद में होगा। दूसरा मैच 6, जबकि आखिरी वनडे 8 नवंबर को खेला जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद दी है। समाजी रब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ग्रीन शर्ट्स ने शानदार खेल पेश किया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार कारकर्दगी पर हमारी टीम को दिली मुबारकबाद। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और उनकी टीम की ज़बरदस्त काविशों की भी तारीफ की। कौमी क्रिकेटर बाबर आजम ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली का एक अहम रिकॉर्ड तोड़ दिया। विराट कोहली ने 39 निस्संचियां बनाई थी, जबकि बाबर आजम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 मैच में अपनी 40वीं निस्संची मुकम्मल की। बाबर आजम ने 47 गेंदों पर 68 रन की इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को फतह दिलाने में अहम किरदार अदा किया। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप का फाइनल आज जनूबी अफ्रीका और भारत के दरमियान खेला जाएगा। मुंबई में शेड्यूल फाइनल आज दिन 2:30 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त सिखाया जाएगा। सेमीफाइनल्स में जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड, जबकि भारत ने डिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। जनूबी अफ्रीका की टीम पहली मरतबा वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल खेल रही है, जबकि भारत की टीम 2005 और 2017 में रनर अप रही। जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान पोलो कप का फाइनल स्कर्दू अंचन की टीम ने अपने नाम कर लिया। शाही पोलो ग्राउंड स्कर्दू में खेले गए फाइनल में स्कर्दू अंचन और स्कर्दू मकबून की टीमें मद्दे मुकाबिल हुई। कांटेदार मुकाबले के बाद स्कर्दू अंचन ने स्कर्दू मकबून को 2 गोल के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया।
آخر میں مہمان خصوصی کمشنر بلتستان کمال خان اور دیگر مہمانوں نے ونر اور رنر اپ ٹیم کے کپتانوں میں ٹرافیاں تقسیم کی۔ یوم آزادی کی مناسبت سے چمک پل پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کر کے آزادی کی خوشیوں کا بھرپور اظہار کیا گیا۔ گورنمنٹ ڈسٹرکٹ جناب پبلک اسکول اینڈ کالج منڈی بہاؤالدین میں انٹر ڈی پی ایس سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا۔ سپورٹس میلے میں ٹیموں کے درمیان کرکٹ، فٹ بال اور والی بال کے مقابلے ہوئے۔ کھلاڑیوں نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر نوید حیدر شیرازی نے کہا کہ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ صحت مندانہ کھیل نوجوانوں کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لیے نہایت اہم ہیں۔ تقریب کے اختتام پر مہمانان خصوصی نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے اور ایونٹ کے کامیاب انعقاد پر پرنسپل کالج اور انتظامیہ کو مبارکباد پیش کی۔ پیرس ماسٹرز ٹینس ٹورنامنٹ کا فائنل ورلڈ نمبر 2 اٹلی کے یانک سنر اور کینیڈا کے فیلکس اویلیاسم کے درمیان کھیلا جائے گا۔ فرانس میں جاری ATP ماسٹرز 1000 کے سیمی فائنل میں یانک سنر نے جرمنی کے الیگزینڈر زویریو کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی۔ سنر نے زویریو کے خلاف 6-0 اور 6-1 سے کامیابی حاصل کی۔ دوسرے سیمی فائنل میں کینیڈا کے فیلکس اویلیاسم نے قازقستان کے الیگزینڈر ببلک کو 7-6 اور 6-4 سے ہرا دیا۔ ناظرین، کھیلوں کی خبروں سے اتنا ہی، اب آپ کے لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی طرف۔ شکریہ نیز۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ پہنچا اپنے اختتام کو۔ ہمیں دیجیے ہماری پوری نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے PTV نیوز۔ درست ہر وقت بر وقت